Hello students, welcome back to this channel. Okay, today we are going to start the square and square roots. Today basically we will discuss about the square properties of any number. Okay, the square properties of any number. So I think everything is visible on the board. A little bit reflection is coming over there. That's why I'm starting writing from here. Okay, today we will learn about the square of a number, the meaning of a square. So let us start with the introduction. And before starting, if you are new to my channel, just subscribe it and press the like button if you like the video. Okay, so you will never miss any update from this channel. If I upload any video, then you will get the instant notification. Okay, starting from the introduction. Okay, I am starting from the introduction of square. As per request of students, you all have requested that I have to use the mixed language, so I will use here mixed language in the explanation, Hindi as well as in English. Okay, so let us continue with this. Square, the meaning of a square is whenever a number is multiplied by itself at only one time. Okay, at only one time. If a number multiplied by itself one time only, then we will provide a special name to that number or to that property, we can say, that is square. Let me explain with an example. For example, 2 into 2 or 3 into 3 or 5 into 5. I am taking 3 examples. Okay, these 3 are the basic examples. Okay, 2 into 2, 3 into 3 and 5 into 5. Okay, so here we can write it as 2 to the power 2, and we can also read it as 2 raised to the power 2. You have already studied in exponent and power. Okay, and here 3 into 3 is equal to 3 raised to the power 3, and 5 into 5 is 5 raised to the power 2. So these are the one way of reading it as 2 raised to the power 2 or 2 to the power 2. These are the two ways of reading it. But one another way, we can shortly read it as 2 square. Okay, 2 square, 3 square. It is quite simple and easy. 2 square, 3 square, 5 square, 9 square, 8 square, any number if it multiplies by itself. Okay, it multiplies by itself. अगर कोई नंबर है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से एक बार, एक से ज्यादा बार होगा, ठीक है, एक से ज्यादा बार होगा तो फिर दिक्कत होगी, तो फिर वो स्क्वायर नहीं होगा. इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं होने जा रही कुछ, वो स्क्वायर नहीं होगा. जैसे ये एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे मैं इस एक नंबर को अगर एक मान लूं तो ये इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 एक बार है तो ये इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं. या फिर आप इसे अगर दोनों नंबर्स को कंसीडर करोगे तो फिर आप कह सकते हो कि ये 5 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, और अगर आप 5 को इंडिविजुअल लेके चलोगे तो फिर कहोगे कि 5 जो अगर आपने इसे इंडिविजुअल लेके चला है तो ये इसके साथ अपने के साथ एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है. 3 बार मल्टीप्लाई हो तो फिर क्यूब का नाम देंगे. Okay, so this is the basic introduction for the square of any number. A number multiplies by itself. Okay, a number, and the number itself multiplies, then it will provide a special number called square of that number. Okay, called square of that number. So this is the basic of the square. What is the meaning of basic of the square? If a number multiplies by itself, यानी नंबर अगर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे हम स्क्वायर बोलेंगे. तो ये क्वाइट सिंपल है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं. ओके, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के क्या प्रॉपर्टीज हैं. ओके, perfect squares and non perfect squares के what are the properties of perfect squares and non perfect squares. Okay, now let me dry the board so writing will be easy. Okay, now we will start. I will write some numbers, some perfect square numbers starting from 1. Okay, square of 1 is 1, square of 2 is 4, square of 3 is 9, and square of 4 is 16, square of 5 is 25, and then after square of 6 is 36, and square of 7 is 49, square of 8 is 64, square of 9 is 81, and square of 10 is 100. Okay, these are the perfect squares. So one pattern you can easily observe which is very common. Okay, one pattern you can easily observe which is very common, that
the perfect square, this is the column of perfect square numbers. Okay, here the number I have written, I am putting that number in a box, are perfect square numbers. Okay, these numbers are the perfect square numbers. So you can observe that always the unit place digit, always the unit place digit is repeating a particular sequence or particular number which is, जैसे आप लोग अगर यूनिट प्लेस को देखोगे तो यूनिट प्लेस यहाँ पे ये है, मैं अंडरलाइन कर दूं ताकि अगर यूनिट प्लेस में प्रॉब्लम ना हो किसी को, सबके यूनिट प्लेस को आपको देखना है। ओके, कायदा ही करते हैं हम उस तरीके से, यूनिट प्लेस को आपको देखना है। तो यूनिट प्लेस आप देखोगे कि यहाँ पे या तो 1 है, या तो 4 है, या तो 9 है, या तो 6 है, या तो 5 है, फिर 9 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 0 है। दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे अगर 0 रहे, 1 रहे और उसके बाद क्या है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, अगर इतने नंबर्स से अगर एंड हो रहा है 1 0 1 4 5 6 और 9, तो इतने नंबर से अगर वो एंड हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है मे बी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इट मे बी, इसका मतलब ये नहीं, डजंट मीन कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। ओके, मैं एक एग्जांपल भी ले सकता हूं, जैसे यहाँ पे 6 है, आपको मैं अगर 46 देता हूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट देयर आर सम चांस टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, कुछ तो चांस है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है अगर इन नंबर से वो एंड करता है। तो नंबर्स जो बच गए, जो नंबर्स बच गए वो देखिए आप, आपके पास बच गया 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये इतने नंबर्स आपके बच गए। यानी कि अगर कोई नंबर के एंड में, इफ एनी नंबर हैविंग एंडिंग डिजिट और यूनिट डिजिट एज 2 3 7 एंड 8, देन वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो जाए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इसका भी कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। 22 है हमारे पास, 23 है, 27 है, 28 है, मैंने 20s के टर्म में ही ले लिया सारा कुछ। 88 भी ले सकते हो आप, 78 भी ले सकते हो, 68 भी ले सकते हो, 67 33 43 कुछ भी ले सकते हो। ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स आपको नहीं मिलेंगे। दिस नंबर्स आर नॉट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ओके, दिस नंबर्स आर not the perfect square number. So here we have a basic knowledge that if a number ending with or if a number having at a unit place, unit digit is 0 1 4 5 6 or 9, then it can be a perfect square. Okay, I'm not saying that it will be a perfect square, ये perfect square होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा, but it can be a perfect square, ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ chances हैं। but those numbers एंडिंग विथ 2 3 7 एंड 8, तो आप ये क्लियरली देख के बता दोगे कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये नंबर बताओ कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, दिस नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो आप सीधा बोलोगे कि नहीं। अगर इस डिजिट से वो एंड करेगा तो आप सीधा बोलोगे कि नहीं, ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हमें कंक्लूजन मिला है अभी तक का। इसके बाद फिर कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज और हैं, और जैसे परफेक्ट स्क्वायर्स को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सिर्फ एक ही मेथड हमारे पास नहीं है कि हम बस मल्टीप्लाई करते जाएं। वी डोंट हैव ओनली सिंगल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर, वी हैव आल्सो सेवरल मेथड्स दैट वी कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ओके, बाय इन टर्म्स ऑफ एडिशन आल्सो। इफ यू डोंट नो मल्टीप्लिकेशन एंड यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, डोंट वरी, आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड इट। ओके, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है या क्वेश्चन में लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, यू हैव टू फाइंड इट बाय द मेथड ऑफ एडिशन, तो फिर वो आपको मैं सिखाऊंगा अभी। ओके, बोर्ड को सूख जाने देते हैं, राइटिंग इजी हो जाएगा। ओके, तो अब मैं जो अब बताने जा रहा हूँ ट्रिक, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, स्लाइटली प्रॉब्लम है आई थिंक फोकसिंग का, जिसे मैं एडजस्ट करूंगा मे बी नेक्स्ट वीडियो में। आई विल फिगर इट आउट व्हाट्स द रियल प्रॉब्लम ऑफ
the focusing that it might be some light over here, so I am not writing in this place. Okay, I am writing from here. ओके तो एडिशन में एक पैटर्न लिखता हूं, फिर वो पैटर्न आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। जैसे 1 इज इक्वल टू 1, फिर मैं करता हूं 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। अब इसमें फिर होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज 9, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 16। इसके आगे भी इसी तरह से पैटर्न चलते रहेंगे, लेकिन हमें बस समझना है, जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द पैटर्न वांट्स टू टीच अस। एज इफ देयर इज अ सिंगल नंबर देन इट विल बी अ स्क्वायर ऑफ 1 एंड इट इज अ स्क्वायर ऑफ 2, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 3 एंड इट इज अ स्क्वायर ऑफ 4। सो आप ऐसा देख सकते हैं, यू कैन सी ओवर हियर दैट 1 एक ऑड नंबर है, पहला ऑड नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, उससे कोई मतलब नहीं है स्मॉलेस्ट है या बिगेस्ट है, बस ये फर्स्ट ऑड नंबर है। एक नंबर को हमने लिया तो वो एक का स्क्वायर आ गया। ओके, एक नंबर लिया तो वो एक का स्क्वायर आ गया। अगर हम यहाँ पे 2 नंबर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे कंडीशन है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेना है, ठीक है। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, इस तरह से एक छोड़ छोड़ के हम कंसेक्यूटिव लेंगे। ओके, तो 1 है, 3 है, तो ये दोनों जब ऐड होगा, व्हेन वी ऐड दिस 2 numbers we get a 4 and the number of digits we are adding as 1 and 2, we are adding 2 numbers. Okay, we are adding 2 numbers, so it will give us the square of the 2 numbers, that is square of 2. Here we are adding 3 numbers, that is 1, 2 and 3, so it will provide us the square of 3. Here we are adding 1, 2, 3 and 4 numbers, so it will provide us the square of 4. How to add it? Just 1, 3, 5 and 7. If you want to find out the square of 5, you can also add that 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9. You will get as 25, which is a square of 5. I think ये समझ में आ गया होगा। It is quite very simple. Okay, it is quite very simple. I think आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आता तो फिर कमेंट्स है, कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं उसे फिगर आउट करूंगा। इसमें भी अगर कुछ अगर डाउट्स रह जाते हैं आप लोगों के, तो फिर मैं उसे फिगर आउट करके और अगले वीडियो में मैं उसे कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ओके, okay, so now we will learn one more interesting thing, because square and square root, we can play with square and square root. There are a lot of things to learn about square and square root. Okay, we can learn over it many things. So next topic will be okay, how to find a square of a number. It is actually it is a trick. Okay, your syllabus pattern is over. Okay, square में इतना ही था syllabus में, लेकिन कुछ बुक्स में पैटर्न करके भी देता है, तो वो पैटर्न को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। आई कांट एक्सप्लेन ओवर बोर्ड बिकॉज आई हैव टू ड्रॉ द पैटर्न एंड इट इज आई थिंक क्वाइट बल्की, सो आई विल एक्सप्लेन ओवर देयर फ्रॉम बुक। ओके, सो वन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू फाइंड अ नंबर, ओके, अ 2-digit नंबर whose ending or whose ones place digit is ending with 5. Okay, let me explain you that how to find the square of 25. You can say, sir, it is 625. Okay, it is 625. Everyone knows it. Okay, if you are in class 8, you will know it that 25 का स्क्वायर होता है सर 625. लेकिन इस पे एक ट्रिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, काफी सिंपल भी कह सकते हैं। मे भी कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ को पता नहीं भी होगा, तो डोंट वरी। जिनको पता नहीं है, मैंने यहाँ पे 25 लिखा है, कुछ नहीं करना है आपको, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो यूनिट प्लेस को ना बिल्कुल अलग कर देना, बाकी प्लेसेस को अलग कर देना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 5 5 जा मल्टीप्लाई, स्क्वायर करने में अपने आप से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 25 को 25 से ना मल्टीप्लाई करके आप क्या करना, आप इसको क्या करना, 35 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। देखो सिंपल ट्रिक है,
स्क्वायर निकाल रहे हैं हम 25 का, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे 35 से। और अभी जैसे आप बिगनर हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप अभी लिख के करोगे। फिर जब 2 क्वेश्चन से आप सॉल्व करोगे ना, सिर्फ 2 क्वेश्चन, तो तीसरे क्वेश्चन में ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस सारा कैलकुलेशन दिमाग में चलेगा। ऑल कैलकुलेशन गोज इनसाइड योर माइंड एंड जस्ट यू टेल मी द आंसर्स। ओके, 5 5 जा 25, यू हैव टू राइट जस्ट 25 एज इट इज। 25 को 25 से लिखना है, कैरी ओवर कहीं नहीं लिखना है कि 25 लिख दिया तो 5 लिख दिया हमने एंड 2 कैरी ओवर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। 25 को 25 एज इट इज लिख दिया। नाउ मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, this will be the answer in one step. This will be the answer in one step. It is quite simple. If you have to find the square of 35, just write it down, the square of 5, that is 25, and multiply 3 by adding 1 to it. 3 and adding 1 gives us 4, that will be 12. So write it just right here just 12, यहाँ पे 12 लिख दीजिए। 3 into 4 यानी 3, जो भी 10th प्लेस या यहाँ पे जो भी नंबर है उससे एक ज्यादा एक बढ़ा के आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और मिल जाएगा आपका जो भी रिजल्ट आता है ना, एकदम बेफिक्र होकर आप इसे यहाँ पे पुट कर सकते हो और ये डायरेक्ट आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है, 1225 आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये बात हुई कि अगर डिजिट एंड करेगा 5 से तब। लेकिन मैं एक और ट्रिक बताने जा रहा हूं मल्टीप्लिकेशन का, जो कि स्क्वायर्स में काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। ओके, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2 स्टेप में जाते हो, ठीक है, या फिर उसे ब्रेक करते हो नियरेस्ट 10 पे, नियरेस्ट 100 पे। लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है, ना तो ब्रेक करना है ना तो कुछ करना है, लेकिन ये आपको बस क्रॉस चेक करने में हेल्प करेगा कि विद इन 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स में आप जो है 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर लोगे। ओके, यू कैन डू अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर वेरी इफेक्टिवली एंड वेरी इजिली। सम स्टूडेंट्स में नो इट, ओके, कुछ स्टूडेंट जानते भी होंगे, दैट इज गुड, लेकिन जो नहीं जानते होंगे वो सीख लेंगे। ओके, सो हियर if I have to multiply 23 into 24, okay, I am writing here 23 into 24 क्योंकि इसमें कुछ भी वैसा नहीं है। ओके, इट इज 23 into 24, ये विजिबल है, आई थिंक, यस इट इज क्वाइट विजिबल। ओके, 23 into 24, जस्ट मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट नंबर्स। ओके, मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट नंबर्स, दैट इज 4 3 are 12, राइट हियर 2 and carry over 1. Now cross multiply each other, that is 2 into 3 and 4 into 2. 2 into 3 you will get 6 and 4 into 2 you will get 8. Add these two products. Okay, add these two products, you will get 18 and 6, you will get 14. Now add the carryover, you will get as 15. Okay, you will get as 15. Now right here 5, right here 5 and 1 is the carryover. 2 2s are 4 and 1 5, that is 552. Okay, now check it. 23 into 24, 4 3s are 12, 4 2s are 8 and 1 9. Okay, now next one is 3 2s are 6 and 2 2s are 4. I am checking it. 2 9 6 15, 5 and 552. Correct answer. Only one step multiplication. So I am showing you one more example. Okay, I am showing you one more example. It is correct. I am showing you one more example. If you didn't learn from here, अगर यहाँ पे नहीं सीख पाए तो फिर आगे आप एक और एग्जाम्पल से सीख लो, है ना। 2 एग्जाम्पल तो इनफ होता है, सफिशियंट होता है कुछ भी सिखाने के लिए। आई होप कि आप सीख जाओगे, आप लोग तो सीख ही जाओगे। चलो देखो, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 36 and 32 का। ओके, वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 numbers that are 36 and 32. मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख रहा हूँ। ओके, आई एम जस्ट राइटिंग द स्टेप्स हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई 6 into 2, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 into 6 plus 3 into 2 as it is. Okay. No repetition of digits, so less chance of confusion. Okay, I am not repeating any digit. I will make it as 46.
So here 6 into 2 and 3 into 6 and 3 into 4. Now it's a little change over here. I am just changing the digits, so confusion ना हो. मैं digits को change कर रहा हूँ, repetition of digits वाले नहीं ले रहा हूँ. आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 3 into 6 and 4 into 2, 4 into 2 और फिर आपको फिर करना है 4 into 3. ये तीन तरह के मल्टीप्लाइज आपको करने हैं. ओके, ये तीन तरह के मल्टीप्लाइज आपको करने हैं. और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस आपको करना क्या होगा कि इसमें जो कैरी ओवर आएगा उसको यहां ऐड कर दें कैरी, और फिर इसमें जो लिखने के बाद कैरी बचेगा यहां पे ऐड कर दें कैरी, और फाइनली इसे तो लिखना है. तो चलिए वही काम करते हैं. 6 2 जा 12, 12 का 2 कैरी ओवर 1, मैंने 1 यहाँ पे लिखा. ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं. तो मल्टीप्लाई इट, दैट्स 3 into 6 and 4 into 2. 3 6 जा 18 and 4 2 जा 8. Just add it. 8 8 16, that is 26 and 1 27. 27 we have to write it 7 and 2 is the carry over. So carry over will transfer here. 4 3 जा 12, 12 to 14. The 1472 is the right answer. You can check it. I am not going to check it. अब वीडियो काफी लंबा हो जाएगा. तो आज यहीं पे खत्म करते हैं. नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे. एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बच रहा है और फिर स्क्वायर रूट बच रहा है. ठीक है, तो इसके बाद फिर कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप करेंगे, और फिर कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक बटन करना. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग.